हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक हैगा सब्जैक्ट हैगा वैसे PHP। तो PHP की PHP एक ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। PHP ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ PHP ਆ, PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਈਟ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ PHP ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ PHP ਆ, ਤਾਂ PHP 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ PHP ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ PHP ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ABC ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ PHP ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ PHP ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ HTML। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ HTML ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कहने का मतलब ये इसको स्टैट का मतलब स्थिर, स्टैट मतलब स्थिर। जी PHP या PHP की एक डायनामिक का मतलब की होंगे, देखो HTML, देखो HTML का पहला पूरा नाम की है, HTML का पूरा नाम हैगा अपने को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पूरा नाम की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दूजी गल की है एक स्टैटिक वैब डिजाइनिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ, ठीक है। स्टैट का मतलब ये होंगे स्थिर, मतलब ये मतलब टैग होंगे आ वो बने बनाए मिलते आ। मतलब कि देखो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਗ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਗ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ, ਮੁੱਖ, ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀਵਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ HTML ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ PHP ਆ, PHP ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ 10 ਟੈਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਆ, ਦੇਖੋ A ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਗ ਹੀ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੀ ਨੇ, ਕੀਵਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ PHP ਇੱਕ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ PHP ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HTML ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ HTML ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ HTML ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ HTML ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। देखो
HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। देखो हाइपर का मतलब की होंगे, जब आप हाइपर की गल करिए, हाइपर का मतलब होंगे उभरना। आप अंग्रेजी की गल करिए, हाइपर का मतलब उभरना होंगे। तो टैक्सट का मतलब की होंगे, टैक्सट मतलब अक्षर है। तो टैक्सट मतलब अक्षर होंगे। तो हम सब तो पहले देखो जी HTML है, HTML एक स्टैटिक आप पहले भी दस चुके हैं, स्टैटिक है वाली स्टैटिक लैंग्वेज है एक। तो टैग ये होंगे टैग कीवर्ड होंगे कीवर्ड्स मुख्य शब्द जिन्होंने आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब जिदा अपन मिल गए उन्होंने उदा ही कर सकते हैं। अगे जो टैग होंगे देखो टैग दो तरह के होंगे, 2 टाइप्स ऑफ टैग। हम टैग किहड़े किहड़े तरह होंगे देखो, सब तो पहले अपने को हैगा पेयर पेयर टैग, सैकंड हैगा अपने अनपेयर्ड। इन्हें अनपेयर्ड टैग कह दो, जब तुम्हें पता था ना स्टैंड अलोन टैग कह दो, चाहे सिंगुलर टैग कह दो, सिंगुलर टैग। ठीक है। हम देखो पेयर का मतलब की होंगे, पेयर का मतलब होंगे दो चीज़ों का कंबीनेशन। ठीक है। जिमें देखो अपने को सिंगल कार आ, ये सिंगल कार आ, ये एक कार अपने होर लपेट दी, तेन बोलते आप दो चीज़ों का पेयर, तो पेयर बन गया। तो उस तरह हम पेयर टैग किहड़े होंगे आ, वो टैग जिन्होंने आप स्टार्ट भी करते हैं, जिन्होंने आप शुरू भी करते हैं, जिन्होंने कितना कितने जाके अंत भी होंगे, उन्होंने आप की बोलते हैं पेयर टैग। जिमें देखो आप कोई भी टैग स्टार्ट करना, मैं स्टार्ट किया HTML, स्टार्ट एंड हो गया, तो इस टैग को मैं एंड किवें करूँगा, तो इस टैग में एंड करूँगा इदा HTML। ठीक है। इस तरह अनपेयर टैग, अनपेयर टैग मतलब जो सिंगल टैग होंगे, मतलब स्टार्ट का होंगे मतलब बंद नहीं होंगे। जिमें देखो अपने को हो गया अमेज टैग हो गया, ठीक है, अपने BR टैग हो गया। देखो अमेज टैग की होंगे, BR टैग की होंगे, ये अगे वरतांगे तो सूँ अगे मतलब जो भी अपनी क्लास होगी पता लग जाएगा इन्हें किमें वरती दा कि किमें प्रोग्राम फिट करीदा। ठीक है। तो इसे अपने को देखो HTML की अपने को एक दोबारा सुन लो, एक स्टैटिक लैंग्वेज आ, स्टैटिक मतलब ये बने बनाए टैग मिलणगे, तो उन्होंने टैग को चक के आप कोई भी अगे मुखातर कोई पेज बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तो बाद हाइपर का मतलब उभरना, मतलब ये टैक्सट मतलब अक्षर, वो अक्षर जो आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़े उभर के बाहर आते हैं, मतलब लिंक करके आप किसी ना किसी अगले पेज के उपर लैके जाते हैं, वो हाइपर टैक्सट। ठीक है। तो इस तो बाद एक मार्कअप लैंग्वेज आ, मतलब ये टैग वगैरह वरतते आप। ठीक है। तो टैग अगे दो तरह होंगे। इस तो बाद आप करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम जिसे कि टैग होंगे, आप टैग वरत लेना, तो टैग बारे आइडिया मिलूगा कुछ। तो हमने ये एक प्रोग्राम देखो, सिंपल प्रोग्राम आप HTML। तो सब तो पहली गल जो अपने HTML प्रोग्राम करना अपन काहदे विच करना, काहदे विच कर सकते हैं, नोटपैड दे विच कर सकते हैं, नोटपैड कर सकते हैं। नोटपैड की एक टैक्सट एडिटर, टैक्सट एडिटर, तो नोटपैड एक टैक्सट एडिटर आ। ठीक है। तो जो आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, आप नोटपैड के बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, आपको अलग तो इंस्टॉल करने की लोड़ नहीं होती। ठीक है। ये एक टैक्सट एडिटर आ। तो हम जो भी आपने HTML का प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम बनाने तो बाद उन्होंने अपने सेव करना, तो सेव किमें करांगे, सेव पहला कि आप प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम का नेम जो भी दे दो, ABC कुछ भी नेम दे दो, प्रोग्राम नेम डॉट HTML जरूर पाना। डॉट HTML की है देखो, एक अपनी एक्सटेंशन की भी है, मतलब आप HTML का कोई प्रोग्राम करते हैं वो एक्सटेंशन आ .html। मतलब हम जो आप प्रोग्राम बनावांगे और नोटपैड के उन्होंने सेव करांगे, आप की लिखांगे प्रोग्राम का नेम ना .html लिखना जरूरी है।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਗ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ HTML ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ? HTML। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਗ ਕੀ ਆਊਗਾ? HTML। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਹੈਡ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ। ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ। ANGLE, ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਗ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਟੈਗ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? HTML ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੋਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਡ। ਠੀਕ ਆ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਪੇਜ। टाइटल कुछ भी दे दो। तो देखो इतने टाइटल टैग में बंद करता, तो इस तो बाद मैं मैं हेड टैग बंद करता। बंद हो गया। इस तो बाद की करेंगे आप? देखो अपन जिन्ने भी टैग वरतने हैं, जिन्ना भी काम करना अपन काहदे विच करना? बॉडी दे विच। बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ B ਟੈਗ। B ਮਤਲਬ ਬੋਲਡ ਟੈਗ, ਬੋਲਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਗ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ A B C D ਤੇ B ਟੈਗ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ B ਟੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਅਰ ਟੈਗ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब स्टार्ट भी होया तो वो बंद भी होया। ठीक है, इस तो बाद अपने को है आई टैग। आई मतलब टैग, तो मैं लिखा GIMT तो आई टैग की करता मैं बंद करता। इस तो बाद अपने को टैग हैगा यू। यू मतलब अंडरलाइन। मैं लिखा GIMT, इतने यू टैग बंद किया। ठीक है, इस तो बाद की लिखा मैं स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक GIMT, स्ट्राइक रहेगा। ठीक है, एक चीज होर ध्यान रखो जी अपने को HTML आ वो की अपने को नॉट केस सेंसिटिव। मतलब देखो जी अपने सी लैंगुएज की करते हैं आप, C++ करते हैं, वो अपने हाई लैवल लैंगुएज होंगे नेगियां। पर जी HTML आ वो की होंगे ने वो केस सेंसिटिव होंगे नेगियां। केस का मतलब की होंगे? देखो केस मतलब अखर, केस मतलब अखर, सेंसिटिव मतलब बड़े या छोटे। मतलब की आ देखो HTML चाहे तुसी देखो HTML टैग आ, चाहे उन्होंने बड़े अखर लिखा चाहे उन्होंने छोटे अखर लिखा, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जी HTML आ वो केस सेंसिटिव नहीं हैगी। आप अपनी मर्जी नाल आप बड़े छोटे अखर पा सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल नोट देना। मान लो अपने को कैप्चा भरते हैं आप, कैप्चा की होंगे जिमें X7UWM तो नाल लिखा होंगे ये भी ये की अपने को केस सेंसिटिव। मतलब कि देखो केस मतलब अखर होंगे भी जी अखर ने केस सेंसिटिव ने। केस सेंसिटिव मतलब भी जिथे बड़ा अखर लिखा उत्थे बड़ा अखर पाओ, जिथे छोटा लिखा तो छोटा अखर पाओ। ठीक है, बदल नहीं सकती। पर ये केस सेंसिटिव नहीं हैगी HTML। पर चाहे तुम बड़े अखर पाओ चाहे छोटे पाओ, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो स्ट्राइक टैग लिखा। इस तो बाद अपने को हैगा मार्क्यू। ध्यान रखो मार्क्यू के डबल ई पैगा, मैं लिखा GIMT। इतने मार्क्यू टैग मैंने बना। ठीक है, इस तो बाद अपने को है P टैग। आप पैराग्राफ आके बरतते हैं। मैं लिखा A
BC XYZ, ठीक है, GIMT। इस तो बाद मैं किया टी टैग बंद कर, ठीक है। तो एक बार तुम एन बेस टैग करो। इस तो बाद देखो अपन की करना, पहला अपन की करना बॉडी बंद करनी है। इस तो बाद अपन की बंद करना लास्ट की HTML बंद करना। तो एक चीज़ ध्यान रखियो, क्योंकि देखो जो आप सारा प्रोग्राम आप HTML के विच कर रहे हैं, इस करके बिल्कुल स्टार्ट से भी HTML होना चाहिए तो बिल्कुल एंड से भी HTML होना चाहिए, ठीक है। जो सारे टैग आप कर रहे हैं बॉडी के, इस करके बॉडी देखो इतने स्टार्ट होगी तो सारे टैग कल हो गए देखो बॉडी के। तो ध्यान रखो जिन्ने भी आप टैग वापरांगे, जिन्ना भी काम करेंगे आप बॉडी के करेंगे, बॉडी तो बाहर नहीं करते, ठीक है। इस प्रोग्राम को बनाने तो बाद नोटपैड से तुसी की करना, तुसी इहनूं सेव करना। सेव तुसी किते भी कर सकते हो, डेस्कटॉप विच कर दो, चाहे मोबाइल डॉक्यूमेंट विच कर दो, किते भी कर दो, तुहाडी चॉइस है, ठीक है। इस तो बाद की होगा देखो, सेव करने तो बाद तुम सेव करोगे, इहनूं मान लो सेव करता फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है, तुमने सेव करता इदां। तो हम देखो जो तुम इसकी आउटपुट देखोगे तो ये आउटपुट कद आएगी, ये आउटपुट कद डिस्प्ले होगी, आउटपुट डिस्प्ले होगी इसकी ब्राउजर के विच। ब्राउजर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता, चाहे मोजिला फायरफॉक्स कर लो, तो कोशिश करो कि मोजिला फायरफॉक्स ही करे, क्योंकि वो ज़्यादा फंक्शन मतलब शो होंगे HTML के, ठीक है। इस तो बाद देखो अपने को की आ मान लो एक ब्राउजर आ आउटपुट कितना आएगी, तो ब्राउजर के विच सब तो पहली बार होगी उन्होंने को बोलते टाइटल बार, टाइटल बार के विच तुसी जो भी इत्थे लिखा फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज इत्थे शो हो जाएगा, तुसी फर्स्ट ये टाइटल आ जाएगा फर्स्ट पेज, ठीक है। टाइटल की है पेज का टाइटल शो होएगा। तो बॉडी की देखो जी आह वाली बात की इनू आप की बोलते हैं ब्राउजर की बॉडी, ये अपने को बॉडी। तो हम देखो सब तो पहले की अपने को बिग टैग आ, बी मतलब जो भी आप देखो बिग टैग की है, बी एक पेयर टैग आ, मतलब स्टार्ट भी हुआ तो एंड भी हुआ, जेड़ा भी ये लिखा चाहे कुछ भी लिखो, चाहे ABC लिखो, चाहे तुम आपका नेम लिखो, वो की हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब मैं लिखा ABCD, थोड़ा की हो जाएगा ये इतना बोल्ड हो जाएगा जो तुम आउटपुट देखोगे, ठीक है। इस तो बाद आई आई का मतलब होंगे अटैक, अटैक मतलब जो तुम आई टैग लिखा वो फिर टेढ़े हो जाएंगे, जिवें देखो आप मैं लिखा GIMT, तो GIMT की हो जाएगा ये आउटपुट आएगी तो थोड़ा टेढ़ा ही आएगी GIMT। इस तो बाद अपने को हैगा जू टैग, जू मतलब अंडरलाइन, जो भी है देखो जो भी आप जू टैग लिखा जू टैग के वो की हो जाएगा अपने को GIMT की हो जाएगा अंडरलाइन हो जाएगा। एक तो बाद स्ट्राइक, हम स्ट्राइक का मतलब की होंगे ये मैं लिखा देखो GIMT, तो की हो जाएगा GIMT की लैंड जी स्ट्राइक। इस तो बाद मैं लिखा मार्क्यू, देखो मार्क का मतलब की होंगे कभी आप देखते हैं इंटरनेट के उपर कोई फोटो इमेज आ रही होंगी है, कोई फोटो इमेज आ रही होंगी है, ठीक है, मतलब किसी फोटो का या मूवमेंट वास्ते उस स्क्रीन पर इदा जान या इदा जान, मतलब लैफ्ट मूव करना या राइट, मतलब सज्जे पासे जाना या खब्बे पासे जाना, तो आप वास्ते मार्क भी वरतते हैं। मार्क भी एक टैग ही आ, यह टैग अपना पेयर, कहीं मैं लिखा GIMT, पहले GIMT होएगा वो की होगा अपने को कुछ इदा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये इदा जाएगा इधर, ठीक है। जो आप डायरेक्शन चेंज करनी है आप जो भी इधर जाए तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, वो अपने डिपेंड करता, ठीक है। जो आप डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप इतने की लिख देंगे, आप लिखांगे मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट, ठीक है, राइट, मार्क्यू डायरेक्शन बराबर राइट है, दोबारा लिखूंगा तब की लिखांगे मार्क्यू बाकी दोबारा स्पेस देके डायरेक्शन,
डायरेक्शन पाओगे इत्थे राइट, ठीक है। इस तो बाद की करो, इत्थे लिखो अपने कोल GIM। ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਧਰ ਲੈਫਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮਾਰਕੀ ਕੀ ਇੱਕ ਟੈਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ टैग। देखो मार्किंग का टैग आ हुण आपां ने देखो जिहड़ा डायरेक्शन आ गई आपां इहदे वास्ते लगा लिया तां मार्किंग दे की हो गई एक एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट हुंदा की है देखो जिवें आपां की है एक स्टूडेंट आ, स्टूडेंट ने की है एक स्टूडेंट का नेम हो गया, क्लास हो गई, उसकी एज हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, वो सारे एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ हो गई, यही चीज़ ये वरती गई है, इस करके ये वाला की हो गया तो यह एट्रीब्यूट हो गया, तो ये सी अपना मेन बेसिक प्रोग्राम HTML का, ठीक है। तो ध्यान रखो सब तो पहले आपां की करना नोटपैड के उपर बनाना, नोटपैड के उपर बना के इनू सेव करना। सेव किवें करना, तुसीं कोई भी नेम दे दो ना डॉट HTML जरूर लगा दो। सेव करने तो बाद तुसीं इहनूं मिनीमाइज कर दो, मिनीमाइज करने तो बाद तुसीं जाओ ब्राउज़र के उपर, चाहे तो उत्थे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकदा, चाहे उत्थे मोजिला फायरफॉक्स हो सकदा, तो तुसीं कोई भी चूज कर लिओ। तो उस तो बाद एक चीज़ होर देखो जिहड़ा अपने ये वाला प्रोग्राम बनाया तो इसकी आउटपुट कुछ इदा आएगी, मतलब कि देखो जी सारी चीज़ा नहीं है ना, ये ब्राउज़र के उपर देखो GIMD भी इत्थे आ जाएगा, GIMD मतलब अंडरलाइन भी इत्थे आ जाएगा, कैलक भी इत्थे आ जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक भी इत्थे आ जाएगा, स्ट्राइक विच लाइन आ गई तो मार्किंग भी नाल ही आ जाएगा। मतलब कि देखो ये अलग अलग लाइन च नहीं होगी, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ BR ਟੈਗ। ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ BR ਲਗਾ ਲਓ, ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ BR ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BR ਟੈਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ BR ਟੈਗ ਆਪਾਂ, BR ਟੈਗ ਲਗਾ ਲਓ, ठीक है। इत्थे तुसीं BR टैग वरतो, BR लाइन ब्रेक वास्ते हुंदा। तां हुण जे तुसीं BR टैग वरतोगे, BR टैग की एक सिंगुलर टैग आ, स्टैंड अलोन बोलदे ने आपां, सिर्फ आपां स्टार्ट कीता इहनूं बंद किते भी नहीं कीता आपां, ठीक है। तां हुण जे तुसीं BR टैग लगाओगे तां इहदी आउटपुट किद्दां आएगी, अलग-अलग लाइन दे विच आ जाएगी। GIMT आ गया, GIMT अंडरलाइन भी नीचे आ गया, ठीक है। स्ट्राइक GIMT ये भी इत्थे आ गया, ठीक है। इस तो मार्किंग भी इत्थे अपने नीचे शो होगा। इस तो बाद अपना एक टैग रह गया P टैग। नहीं जब पैराग्राफ बात करते हैं हम ये की है देखो हम आप अलग-अलग लाइन में लिखा ABC लिखा अलग लाइन XYZ लिखा तो GIMT ते P टैग इतने बंद करता, पर पैराग्राफ के P टैग की होएगा जो अपने अलग-अलग लिखे ABC XYZ या GIMT ये अपने एक लाइन में शो होंगे ABC XYZ ते GIMT, ठीक है जी। तो उस तो बाद की करो हुण जे आपां चाहते भी अलग-अलग लाइन दे विच आए ओही चीज़ BR टैग वरत लो, हर एक लाइन की हो BR टैग ला लो तो हम अलग-अलग लाइन दे विच आ जाए। ये सी अपना HTML का बेसिक प्रोग्राम तुसीं कर लियो। सब तो पहले देखो HTML हुंदा की आ, HTML की है एक स्टैटिक वैब डिजाइनिंग लैंग्वेज आ, ठीक है। मतलब PHP सीखने तो पहला तुहानूं HTML आउणी चाहिए आ। तो HTML की है एक स्टैटिक आ जिहदे उपर बने बनाए टैग होंदे आ, ठीक है। टैग नूं आपां चक के कोई ना कोई आपां पेज बना सकदे, कोई ना कोई प्रोग्राम कर सकदे, ठीक है। तो इहदा प्रोग्राम आपां सेव करांगे .html नाल, इहदी आउटपुट देखांगे आपां, आउटपुट देखांगे इहदी आपां ब्राउज़र दे विच। ब्राउज़र तुसीं कोई भी इंस्टॉल कर लिओ, ठीक है। तो इस तो बाद हुण आ टैग रह गया एक देखो हैड टैग इत्थों स्टार्ट हो के इत्थे बंद हो गया, तो ध्यान रखियो आपां हैड दे विच जदों भी किसी भी टाइटल लिखना ना तो अपने हैड दे विच टाइटल टैग वरतना, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਵਰਤਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਟੈਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਇਦਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਰਤੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੜੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ।